وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد كل ما ذكره ذاكرون. اللهم صل على سيدنا محمد كل ما غفل عن ذكر الغافلون. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلم لنا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها ظاهرها وباطنها صغيرها وكبيرها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجو إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع أهل الإيمان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا زورا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فعزمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم شتت شملهم. اللهم فرج جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اجعل خير امور آخره وخير عمل خواتمه واجعل خير ايام يوم يلقاك اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، مولا سری جہری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں جان کر انجان سے جتنے بھی گناہ کیے ہیں ہوئے ہیں اپنے دریائے رحمت سے سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم گناہوں کے عادی ہے، تو مغفرت کا عادی ہے، ہم سے گناہ نہیں چھوٹ سکتے، تو اس سے معافی نہیں چھوٹ سکتی۔ اے اللہ گناہ کر کر کے زمین بھر چکی، فضا بھر چکی، آسمانوں تک ہمارے گناہ پہنچ چکے ہیں۔ اے اللہ ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں، تو جانتا ہے ڈوبا ہوا خود نہیں نکل سکتا۔ اے اللہ اپنی رحمت کی چادر ڈال کر تو ہمیں گناہوں کے سمندر سے نکال دے۔ اے اللہ ہمارے گناہ چاہے جتنے بھی ہو پھر بھی اس کی ایک انتہا ہے، اس کے مقابلے میں تیری رحمت کی چادر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ مولا ہمارے گناہوں کے اوپر اپنی رحمت کی چادر ڈال دے۔ مولا آج تک تو نے ستاری کا معاملہ فرمایا، مولا اگر گناہوں پر تو پردہ نہ ڈالتا کوئی ہم پر تھوکنے کے لیے تیار نہ ہوتا، لوگ ہم سے پیشاب پاخانہ کی طرح نفرت کرتے۔ مولا جیسے تو ستار العیوب ہے، اے اللہ تو ایسے غفار الذنوب بھی ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، بیوی بچوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، بھائی بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے قریبی بعیدی رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف فرما دے، پڑوسیوں کے محلے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، بستی والوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری دنیا کے ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ قیامت تک کے آنے ایمان والی نسلوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا، حالانکہ ہم اس قابل نہیں تھے مولا، ہماری اپنی زندگی کے 40 سے 41 رمضان گزر چکے۔ مولا تو جانتا ہے ہم نے رمضان کی کتنی ناقدری کی ہے، کوئی عبادت تیری شان میں عبادت کہنے کے لائق نہیں ہے۔ ہماری نمازیں بھی گناہ تھی، ہماری تلاوتیں بھی گناہ تھی، ہمارے صدقات بھی گناہ تھے، ہماری اے اللہ تیرے سامنے دعائیں بھی گناہ تھی۔ اے اللہ روزہ بھی ہمارا تو جانتا ہے، تراویح بھی تو ہماری جانتا ہے۔ اے اللہ تجھے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں، ہمارے آنسو بہانے کی تجھے ضرورت نہیں۔ اے مولا تیرے لیے تیری عبادت کے لیے اے اللہ فرشتے کافی ہے۔ اے اللہ ہم اس قابل نہیں تھے، اتنی کوتاہیوں کے بعد مولا ہمیں یہ رمضان کا مبارک مہینہ دیا جاتا، لیکن مولا تو بڑا مہربان ہے، تو نے اپنے عرش پر لکھ دیا ہے رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت کر جاتی ہے۔ اے اللہ تو نے ایک موقع دیا تھا، اے اللہ 2-2.5 سال کا لاک ڈاؤن ہوا، اے اللہ ہم نے تجھے کتنا ناراض کیا، تیری رحمت تو بڑی وسیع ہے مولا، تو نے تو قرآن میں ذکر کیا ہے ہم بہت سے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دیتے ہیں، بندے اور بندیوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، گناہ کرنے کے بعد انہوں نے توبہ بھی نہیں کی ہوتی ہے، ان کے ذہن و دماغ میں بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن مولا ہم نے تجھے کتنا ناراض کیا ہوگا۔ اے اللہ جب سے تو نے دنیا آباد کی ہے، اے اللہ آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوگا، زمین کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوگا، رمضان تیری رحمتوں والا مہینہ ہے، تجھے ہم نے کتنا ناراض کیا تھا، تو نے مسجدوں کے دروازے بند کر دیے تھے، حرمین شریفین کے دروازے بند کر دیے تھے، تیرے نبی کے روزے کی حاضری بند کر دی تھی۔ اے اللہ پھر تو نے تیرے نیک بندوں کے آنسو بہانے پر دوبارہ اپنے رحمت کے دروازے کھول دیے، لیکن مولا ہم اپنی عادتوں سے باز نہیں آئے، رحمت کا عشرہ آیا مولا وہ ہمیں صدائے دیتا رہا۔ اے اللہ ہم نے سنی کو انسنی کر دی، کوئی غفلتوں میں گناہوں میں کھانے پینے میں اے اللہ سونے میں اے اللہ باتوں میں ہم نے اپنا وقت گزار دیا۔ اے اللہ مہمان ناراضگی کی حالت میں لوٹا ہے، ہماری شکایت کو لے کر لوٹا ہے۔ اے اللہ ہماری ہلاکت میں کوئی تردد نہیں ہے، لیکن دنیا میں تیرے کتنے خوش نصیب بندے اور بندیاں ہیں جنہوں نے رمضان کی قدر کی، رحمت کے عشرے کی قدر کی، جن کی عبادتوں پر تجھے ناز ہے، جن کی تلاوتوں پر تجھے ناز ہے، جن کے آنسوؤں کے بہانوں پر تجھے ناز ہے مولا، جن کا قیام الليل تو پسند کرتا تھا۔ اے اللہ جن کی عبادتوں پر تو فرشتوں کے سامنے فخر کرتا تھا۔ اے اللہ ان خوش نصیب بندوں میں
हम बदनसीब बंदों को भी शामिल फरमा ले। मौला हमें रहमत के अशरे से महरूम न फरमा। अल्लाह मग़फ़िरत का अशरा आया, पूरा अशरा अल्लाह हमें सदाए देता रहा। अल्लाह वो हमें सदाए, दिन में भी फरिश्ता ऐलान करता रहा, रात के गुनाह करने वालों दिन में खुदा के सामने सच्ची पक्की तौबा कर लो। रात को भी फरिश्ता ऐलान करता रहा, ऐ दिन के गुनहगारों रात को खुदा के सामने सच्ची पक्की तौबा करते रहो। तेरे कितने खुश नसीब बंदे हैं जिन्होंने आंसू बहाकर सच्चे दिल से तौबा कर कर अल्लाह तेरी मग़फ़िरत के अशरे का बंदर अल्लाह अपनी मग़फ़िरत के फैसले करवा दिए। मौला हमारी हालत तो हुई अल्लाह निकम्मे भगोड़े गुलाम की तरह से रही, हम अपनी आदतों से बाज नहीं आए। अल्लाह तेरा मेहमान नाराजगी की हालत में लौटा है। अल्लाह हमें भी माफ फरमा दे, अल्लाह माफ फरमा दे। अल्लाह हमारी सारे गुनाहों पर सत्तारी का मामला फरमावर तेरे उन खुशनसीब बंदों के अंदर हमें शामिल फरमा ले जिनके लिए तूने मग़फ़िरत के फैसले फरमा दिए हैं। अल्लाह ये आखिरी अशरा शुरू हो चुका था, अल्लाह देखते ही देखते आधा अशरा गुजर चुका। अल्लाह आज खत्म कुरान हुआ है, अल्लाह उफ़ाज़ कुरान ने अल्लाह कलाम पाक को खत्म किया है। अल्लाह हाफिज़ कुरान तो तू है, लेकिन तूने अपने बंदों को एजाज के तौर पर तेरा लक़ब अल्लाह इन बंदों को दिया है। मौला इन्होंने कितनी कुर्बानियां दी है तब जाकर ये हिफ्ज़ किया है। इनके माँ बाप की, इनके असातिज़ा की कुर्बानी लगी हुई है। अल्लाह रमजान में भी मौला हम तो अल्लाह इफ्तार के वक्त मजे के शरबत पीते हैं, मजे के इफ्तार करते हैं, सहरी के वक्त खाने खाते हैं, और इन बेचारे हाफिजों को अल्लाह महराब सुनाने की फिक्र होती है, तरावी सुनाने की फिक्र होती है। अल्लाह तेरे इन बंदों ने हजरत जिब्राइल की और हजरत इमाम अल्लाह प्यारे नबी की अल्लाह सुन्नत को अल्लाह इन्होंने जारी फरमाया है। इस सुन्नत की बरकत से मौला तूने हदीस पाक के अंदर तेरे नबी ने अल्लाह जो हाफिज कुरान के लिए फजाइल बयान फरमाए हैं, दुनिया और आखिरत के एतबार से इन सारे फजाइल से अल्लाह हमारे हिफ़ाज़ कुरान को और उसके अलावा दुनिया में जहाँ कहीं सही महराब सुनाया जा रही है, सही अकीदे वाले हैं, अल्लाह उन सबको अल्लाह दुनिया आखिरत के अंदर वो बदले अता फरमा दे। अल्लाह इनके कुरान को उनके लिए आखिरत में नजात का जरिया बना दे, उनके माँ बाप के लिए बना दे, उनके असातिज़ा के लिए बना दे। जिन लोगों ने इनके पीछे जान माल की कुर्बानी दी है, इनके पीछे अल्लाह इनको इनका बेहतर से बेहतर अजर अता फरमा। मौला इनका अजर अल्लाह तरावी के सुनने वाले नहीं दे सकते हैं, तो ही अपनी तरफ से बेहतर बदला अता फरमा। अल्लाह इनके कुरान को दुनिया में भी इनकी हिफाजत का जरिया बना दे, कमर में भी हिफाजत का जरिया बना दे, आखिरत में भी हिफाजत का जरिया बना दे। अल्लाह दिल में कुरान है, उस कुरान की अजमत के बुनियाद के ऊपर अल्लाह इन हिफाज़ कुरान को खुसूसन और हम सबको अल्लाह उमूमी गुनाहों से बचा दे, खुसूसन मोबाइल की लानत से बचा दे, अल्लाह टच मोबाइल के गुनाह से बचा दे, अल्लाह उससे हमारी अल्लाह शैतानी चरखे से हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा दे, खुसूसन उम्मत के जवान बच्चे और बच्चियों की हिफाजत फरमा दे। अल्लाह दुश्मनों ने ये चरखा हमारे हाथों में दे दिया, तस्बीह हमारे हाथों से छूट गई। अल्लाह कहाँ उम्मत उसके अल्लाह दीन के अंदर घोड़ों की पीठ के ऊपर अल्लाह मैदान जिहाद में अल्लाह दीन के अहिया के लिए अल्लाह जान माल की कुर्बानी लगाते थे, रात को मसल्लों की पीठ के ऊपर अल्लाह तेरे सामने राज़ो नियाज करते थे, अल्लाह नमाजों के अंदर कुरान को खत्म करते थे। अल्लाह दुश्मनों ने एक हरबा इस्तेमाल किया और उसमें 100% कामयाब हो गए। अल्लाह आज उम्मत के जवान बच्चे और बच्चियां बिस्तरों पर अल्लाह उनकी रातें मोबाइल के पीछे गुजर जाती है, फजर की अजान हो जाती है और फिर फजर की अजान के वक्त शैतान सुला देता है, नमाजों को कज़ा करवा देता है। मौला दुनिया में जो कुछ हालात है मौला ये सब हमारी बदआमालियों का नतीजा है। तेरी तरफ आसमान पर जैसे अमाल जाते हैं अल्लाह इसी तेरी तरफ से फैसले होते हैं। अल्लाह तूने हमें एक रमजान का मुबारक महीना दिया है, अल्लाह दुआओं के जरिए तकदीरें बदलती है। हमारे गुनाहों की नहुसत की वजह से तूने अगर हमारे लिए जिल्लती के फैसले कर दिए हैं, हमारे लिए मौला जलील होने के फैसले कर दिए हैं, हमारे लिए रुसवाई के फैसले कर दिए हैं, अल्लाह तो दुआओं के जरिए तकदीरें बदलती है। अल्लाह कुरान खत्म हुआ है, हमारे नबी ने फरमाया है कुरान के खत्म के ऊपर दुआएं कबूल होती है, और फिर खुसूसन रमजान का महीना है, दिन में भी दुआ कबूल होती है, रात में भी दुआ कबूल होती है। मौला आखिरी अशरा है जिसके नबी ने बेदार होने की अल्लाह ताकीद की है, और उसमें भी मौला ताक रात है। अल्लाह कितने असबाब जमा हुए हैं, जाहिर इन असबाब को देखते हुए मौला तो फैसले फरमा ले। मौला हम पूरी उम्मत की तरफ से वकालत कर रहे हैं, उम्मत को जिल्लती के गढ़ों से निकाल कर इज्जत की बुलंदियों के ऊपर पहुंचा दे और दुश्मनों के नरगे से निकाल दे। अल्लाह आज दुश्मन अल्लाह दुनिया कुफ्र अल्लाह जैसे दस्तरखान पर भूखे भेड़िए गिरते
دیکھتے ہیں اس طرح سے پورے امت کے مٹانے کے در پر ہے اسلام اور اہل اسلام، اے اللہ ان کا نام و نبوت اللہ ختم کرنے کے در پر ہے، خصوصاً اے اللہ ہندوستان سے اسلام کو، تیرے قرآن کے ماننے والوں کو، مسجدوں کو، مدرسوں کو، خانقاہوں کو، دینی درسگاہوں کو، تبلیغی مراکز کو، ان سب کو ختم کرنے کی ان کی نیت ہے، لیکن جسے تو رکھے اسے کون چکھے؟ اے مولا تو نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے، ہمیں آنسو بہا کر تجھے منوانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کو ہم سے عداوت نہیں ہے، تیرے نام سے عداوت ہے، تیرے نبی سے عداوت ہے، تیرے قرآن سے عداوت ہے، اے اللہ تیرے دین سے عداوت ہے۔ اے اللہ اگر ہم ان کی باتوں کو مان لیوے، یہ ہمارے لیے دسترخوان بچھائیں گے، ایئر کنڈیشن روم میں ہمیں آرام کروائیں گے۔ اے اللہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ماں بہنوں کی عصمت دریافت کی جا رہی ہے، اے اللہ جوان لوگوں کو خون بہایا جا رہا ہے، اللہ جیل کو سلاخوں کے پیچھے ایسے مظالم ڈائے جا رہے ہیں، کبھی آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوگا۔ فقط مولا قصور یہ ہے ہم تیرا نام لینے والے ہیں، اور پھر مولا تیری غیرت کو للکارا جا رہا ہے، ہمیں تانے دیے جا رہے، کہاں ہے تمہارا آسمان کا خدا، بلاؤ تم اپنی مدد کے لیے۔ مولا ہم کمزور ہیں، ہم تو اپنے نبی کی سنت کے مطابق ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، مولا تو ان سب کو ہدایت دے دے، انہی میں اے اللہ اکرمہ ابن ابی جہل پیدا کر دے، انہی میں خالد ابن ولید پیدا کر دے، انہی میں عمر ابن خطاب پیدا کر دے، انہی میں ابو سفیان پیدا کر دے۔ اے اللہ کانٹوں میں پھول تو پیدا کرنے والا ہے، کیچڑ میں پھول تو پیدا کرنے والا ہے، مٹی کے اندر سے یاقوت تو نکالنے والا ہے، مولا رات کو دن سے، دن کو رات سے تو بدلنے والا ہے، مولا انہی کو تو اسلام کا علم بردار بنا دے، اسلام کا حامی اور مددگار بنا دے، ان کے دلوں میں اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں جو نفرت ہے اسے محبت سے بدل دے۔ اور اے اللہ اگر ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انہیں اگر ان کے سینوں پر ابدی گمراہی کی مہر لگا دی ہے اور یہ دین اور مسلمانوں کے لیے روڑے بن رہے ہیں، تو ایسے روڑوں کو اللہ راستے سے ہٹا دے، ایسے کینسر کے پھوڑوں کا علاج فرما دے، مولا عبرتناک ان کو سزائے دے دے، ان کو اپنی مادیت کے اوپر اگر ناز ہے، اگر وہ اللہ زمینی ہے تو زمین میں دھسا دے، اگر فضائی ہے تو آگ لگا دے، اگر سمندری ہے تو سمندر میں ڈبو دے، تیرے نبی کی امت کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ صحابہ کو مسائل پیش آتے تھے، نبی کی خدمت میں جاتے تھے، نبی کے مبارک ہاتھ اٹھتے تھے، مبارک ہے اللہ زبان حرکت کرتی تھی، اے اللہ تیری طرف سے مدد نازل ہو جاتی تھی، اے اللہ فیصلے ہو جاتے تھے۔ آج امت یتیم ہے، امت کا کوئی مقتدا نہیں ہے، امت کی نैاں ڈوب رہی ہے، امت کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، ساحل نظر نہیں آ رہا ہے، اے اللہ تو امت کا میّر ملا بن جا، امت کی کشتی بھور میں سے نکال دے، اے اللہ امت کی کشتی لبے ساحل لگا دے، دشمنوں کے نرگے میں سے نکال دے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، ملک شام کے مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی، عراق کے مسلمانوں کی، ایران کے مسلمانوں کی، برما کے مسلمانوں کی، اے اللہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی، پاکستان کے مسلمانوں کی، بلکہ تیرے نبی کا امتی مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا ہو یا بچہ، جہاں کہیں دنیا میں رہتا ہو، جس کونے میں بھی ہو، اور خصوصاً اے اللہ ہندوستان کے اندر سب کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، ایمان کی، اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ فرما، پوری امت کی طرف سے وکالت کر رہے ہیں، تیرے سامنے اللہ بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ تیرے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو امت کے حال پر رحم فرما لے، رحم فرما لے مولا، رحم فرما لے مولا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اے اللہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے تیرے سامنے توبہ کے لیے جو ہاتھ اٹھتے ہیں تجھے لوٹانے سے شرم آتی ہے مولا۔ قرآن ختم ہوا ہے، اے اللہ ہم تیرے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں، تو امت کے اوپر سے حالات کو ہٹا دے، تو حالات کو ہٹا دے مولا، تو بڑی قدرت والا ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اے اللہ رات کو دن سے تو بدلنے والا ہے، دن کو رات سے تو بدلنے والا ہے، عزت کو ذلت سے تو بدلنے والا ہے، ذلت کو عزت سے تو بدلنے والا ہے۔ تو جسے ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، تو جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ سارا خیر اور شر تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما لے۔ حضرت محمد کریم صاحب اور ان کے ساتھیوں کی اور بھی جو مسلمان پوری دنیا میں اے اللہ قید و بند میں مبتلا ہے، مظلوم ہے، ظالموں کے ظلم کے شکار ہے، اے اللہ غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، سب کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ رمضان آتا ہے، اے اللہ رمضان کی ہم تیاریاں کرتے ہیں، سحری کی تیاریاں کرتے ہیں، افطار کی تیاریاں کرتے ہیں، تیرے وہ بندے جو جیل کی سلاخوں میں پیچھے ہے، بعض تو وہ جوان ہیں
جو बूढ़े माँ बाप के लिए सहारा थे, साल से वो जेल के पीछे चले गए हैं। बूढ़े माँ बाप अल्लाह बिस्तरों पर एड़ियां रगड़ रहे हैं, उनकी कोई खिदमत करने वाला नहीं है। इफ्तार का वक्त आता है, कोई उनको घूंट पानी पिलाने वाला नहीं है। उनके दिल पर क्या गुजरती होगी मौला तू जानता है। उनके गरम गरम आंसुओं का तुझे वास्ता देते हैं मौला। उन जवानों को तू गैर से अल्लाह ईद के चांद देखने से पहले हमें ये खुशी का मौका दे दे, उनकी रिहाई की शक्ल पैदा फरमा दे। इतने जवान जिनकी बीवियां मौजूद है, शौहरों के होते हुए बेवबी की तरह जिंदगी गुजार रही है। अल्लाह कितने मासूम बच्चे जिन्होंने बाप का चेहरा साल से नहीं देखा। बच्चे ये समझ रहे हैं बाप जमीन का पेवन बन चुका है, लेकिन उन बच्चों को पता नहीं है बाप जेल के पीछे खून के आंसू रो रहा है। ऐ अल्लाह तू इन बच्चों पर रहम फरमा दे, इन बीवियों पर रहम फरमा दे। ऐ अल्लाह ईद के चांद से पहले हमें इन लोगों की रिहाई की खुशी अल्लाह उसके फैसले सुना दे मौला। तू कादिर मुतलक है, तूने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से रिहाई अता फरमाई, इज्जत की चोटियों के ऊपर तूने पहुंचाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से रिहाई अता फरमाई। आज भी तू उसी ताकत के साथ मौजूद है। तो उम्मत के हाल पर रहम फरमा ले। हमारी तरफ से, पूरी उम्मत की तरफ से लाडले रसूल को उनकी कुर्बानियों का बेहतरीन से बेहतरीन सिला अता फरमा, मकाम महमूद अता फरमा, शिफाअत कुबरा नसीब फरमा, वसीला अता फरमा, लिवाउल हम्द अता फरमा। जन्नत में तूने एक खास मकाम रखा है, हमें चढ़ते सूरज से ज्यादा यकीन है वो हमारे नबी के लिए है। लेकिन हमारे नबी ने हमें दुआ के लिए कहा है ताकि कल क़यामत के दिन हमारी सिफारिश करेंगे मौला तो हमारे नबी को दर्जात अता फरमा दे। अल्लाह अंबिया के बाद सहाबा की मुकद्दस जमात जिन्होंने अल्लाह जान बान की बाजी लगाकर अल्लाह खून की होलियां खेलकर अल्लाह भूखे प्यासे अल्लाह थके हारे मुसाफिर अपनी कब्रों में पहुंचे हैं, उनकी कब्रों को जन्नत का बगीचा बना दे, जन्नत की खिड़कियां खोल दे, जन्नत की गिज़ाएं अल्लाह पहुंचा दे, ठंडी ठंडी हवाएं पहुंचा दे और जन्नतुल फिरदौस में अंबिया के बाद सबसे बड़ा मकाम अता फरमा। अल्लाह हमारे माँ बाप, हमारे असातिज़ा, हमारे अस्लाफ जिन्होंने दीन के जिस शोबों में भी जो खिदमतें की है, इनफिरादी इज्तिमाई और उम्मत तक को अल्लाह जिस शक्लों में भी उन्होंने दीन पहुंचाया है, अल्लाह उनके एहसान का बदला नहीं दे सकते हैं। हम अपने खुसूसन माँ बाप की तरबियत का बदला नहीं दे सकते हैं। अल्लाह आज वो कब्रों में जा चुके हैं, एक सुभान अल्लाह के मोहताज हो चुके हैं मौला। वो तेरे बंदे और बंदियां थी, कमजोर थे मौला, उनसे गुनाह हुए होंगे। अल्लाह अगर हुकूकुल इबादत में अल्लाह कोताहियां हुई है तो अपनी तरफ से अदा कर दे, और तेरे हुकूक में कोताहियां हुई हो तो तू उसे माफ फरमा दे। अल्लाह रमजान आया था, अल्लाह हम दिल के अंदर नाखुश थे और कब्र वाले खुश थे। रमजान जैसे जैसा गुजरता जा रहा है हम खुश होते जा रहे हैं, अल्लाह कब्र वाले नाराज होते जा रहे हैं। अल्लाह हमारे नबी ने फरमाया है रमजान के आने के ऊपर तू कब्र वालों से अजाब को हटा देता है। अल्लाह तू तो करीमों का करीम है, तू तो रहीमों का रहीम है। करीम की शान ये नहीं है अल्लाह किसी को माफ करने के बाद, किसी से अजाब और तकलीफ को दूर करने के बाद दोबारा उसको अजाब दे दे, ये तेरी शान के लायक नहीं है। अल्लाह तेरी रहमत की चादर बहुत वसी है, तूने अपने अर्श पर लिखा है मेरी रहमत मेरे गजब से सबकत कर जाती है। अल्लाह तू अपने इन कब्र वाले बंदों के ऊपर से रमजान की मुबारक अल्लाह घड़ियों की वजह से अल्लाह तूने अजाब को हटा दिया है। हमेशा के लिए इनकी मगफिरत के फैसले फरमा दे, जन्नत के रफ़े दर्जात के फैसले फरमा दे। अल्लाह जन्नतों की फिरदौस के फैसले फरमा दे, तू उनसे राजी हो जा। अल्लाह अगर तूने माफ कर दिया तेरे खजाने में कोई कमी नहीं होगी मौला, उन सब अल्लाह मरहूमीन का काम बन जाएगा मौला। उनकी मगफिरत फरमा, हमारी भी मगफिरत फरमा मौला। रोजाना लोगों की मौत का ऐलान सुनते हैं, गुज़िश्ता सालों के अंदर अल्लाह कितने लोग मर गए अल्लाह तस्वुर में नहीं आता है मौला। इतनी मौतें हुई कि हमारे ज़हनों से मरने की अल्लाह अहमियत भी खत्म हो चुकी है। हम जिंदगी इस तरह से गुजार रहे हैं जैसे गोया हमें कभी मरना ही नहीं है। अल्लाह तू हमें माफ फरमा दे, हमें सही समझ अता फरमा दे। जितने मरहूमीन दुनिया से चले गए हैं उनकी भी मगफिरत फरमा, हमारी भी मगफिरत फरमा। हमें मौला उनसे इबरत लेने की तौफीक अता फरमा। अभी रमजान में भी अल्लाह दो इंतकाल हुए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा मौला। ये ऐलान एक मर्तबा हमारा भी होगा, फुला इब्ने फुला का इंतकाल हो गया, लोग हमारे घर की तरफ आ रहे होंगे, कोई कब्र खोद रहा होगा, कोई कफन तैयार कर
रहा होगा, कोई पानी गर्म कर रहा होगा, मौला एक चारपाई पर लिटा कर, गुस्ल देकर, कफन पहनाकर अंधेरी कब्र की तरफ ले जाया जाएगा। तन्हाई की वहशत सता रही होगी, बदअमालियों की वहशत सता रही होगी। दुनिया में माँ बाप सहारा थे, बीवी बच्चे सहारा थे, दोस्त अहबाब सहारा थे, रिश्तेदार पड़ोसी सहारा थे, असातिज़ा शागिर्द सहारा थे। ऐ अल्लाह वहां कोई हमारा सहारा नहीं होगा। ऐ अल्लाह गमरातुल मौत, सकरातुल मौत में हमारी मदद फरमा। जान कनी का आलम होगा, बदन से रूह निकल रही होगी, शैतान एड़ी चोटी का ढेर लगा रहा होगा, हम कमजोर, ईमान कमजोर। मौला उस वक्त फरिश्तों के जरिए तो हमें कलमे की तलकीन फरमा। मौला खात्मा ईमान पर फरमा, शैतान का मुंह काला फरमा। हमारी कब्र को जन्नत का बगीचा बना दे, जहन्नम का गड़ा बनने से बचा दे। मौला कोई हमारा उस वक्त सहारा नहीं होगा, तू बेसहारों का सहारा है। दुनिया में तूने हमारी नाफरमानियों के बाद करोड़ों नेमतें हमें अता फरमाई है, बगैर मांगे तूने हजारों नेमतें अता की है। मौला आज तुझसे भीख मांग रहे हैं, हमारी दुनिया भी बना दे, कब्र भी बना दे, मैदान महशर भी बना दे, आखिरत भी बना दे। हमारी कब्र को जन्नत का बगीचा बना दे, आखिरत की सारी मंजिलें आसान फरमा दे, पुल सिरात पर से बिजली की तरह पार फरमा दे, नामे अमाल दाहिने हाथ में अता फरमा दे, नेकियों के पलड़े को झुका दे, प्यारे नबी के मुबारक हाथों से हौज़े कौसर का जाम नसीब फरमा दे, हमेशा हमेशा की जहन्नम से बचाकर जन्नत में दुखूल औली नसीब फरमा। अल्लाह हौज़े कौसर पर जावे, फरिश्ते धक्के देवे, फरिश्तों के धक्कों से बचा दे, हमें उन बिदात से, रसूमात से और दीन के दुश्मनों के गलत तरीकों से बचा दे कि फरिश्ते शिकायत करें, नबी भी नाराज होकर कहे सोकन सोकन, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। अल्लाह रहमत वाले नबी की दुआएं हमें अता फरमा, उनके मुबारक हाथों से हौज़े कौसर का जाम अता फरमा, उनके धक्के से हमारी हिफाजत फरमा ले, हमसे और पूरी उम्मत से राजी हो जा। ऐ अल्लाह जब से तूने दुनिया आबाद की है, अल्लाह तेरे नेक बंदों ने, इमामुल अंबिया ने, सवा लाख नबियों ने, नबियों के सहाबा ने, कुतुब गौस अब्दालों ने, तेरे नेक बंदे और बंदियों ने जिस जमाने में, जिस मकान में, जिस हाल में तुझसे जितनी भी खैर मांगी है, हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा दे। जितने भी शुरूर से पनाह चाहिए उनसे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा दे। मौला ये उम्मत दावत अल्लाह कुफ्र और शिर्क के साथ अल्लाह दुनिया में तेरे अलावा हजारों माबूदों को मानकर जिंदगी गुजार रहे हैं, ये भी तेरा कुंबा है अल्लाह, ये भी तेरे नबी की उम्मत है, माहौल उनको खाया हुआ है अल्लाह, इनको भी हिदायत दे दे। मौला तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है और इनको जहन्नम की आग से बचा दे, जहन्नम की आग से बचा दे, जहन्नम की आग से बचा दे। तेरे नबी का कयामत की उम्मत की कसरत पर खुश हो जाएंगे, नबी के कलेजे को ठंडक पहुंचा दे। मौला दुनिया में नबी थे, काफिरों ने दीन दुश्मन समझकर, पराया समझकर, अजनबी समझकर तकलीफें पहुंचाई थी। आज हम अपनी जवानों से झूठी मोहब्बत के दावे करने वाले, ऐ अल्लाह नबी जख्मों से चूर है, अल्लाह जख्मी दिल के ऊपर अल्लाह सुन्नतों के जनाजे निकालकर नमक पाशी कर रहे हैं, कांटों के बीज बोकर हम फलों की उम्मीद कर रहे हैं। हमसे ज्यादा नादान और अहमक कौन होगा? ऐ अल्लाह तू हमें माफ फरमा दे, हमें सुन्नतों का इश्क नसीब फरमा, सुन्नतों के सांचों में डाल दे, इसके नबी से मालामाल फरमा दे, 24 घंटों की जिंदगी सुन्नत के मुताबिक बना दे। तबीयतें चाहे न चाहे हमारी 24 घंटों के हर हरकत और सकनात अल्लाह सुन्नत के मुताबिक हो। सुन्नत के बगैर तेरी रजा नहीं, तेरी जन्नत नहीं, जन्नत की नेमतें नहीं, तेरा कुर्ब नहीं, तेरे नबी की सिफारिश नहीं, सहाबा के अल्लाह मुआनका और मुसाफा नहीं है। अल्लाह हमें सुन्नतों का आदी बना दे, अल्लाह हमें सुन्नतों का आदी बना दे। अल्लाह हमने रोजे रमजान के रखे हैं, इन रोजों को हमारे लिए ढाल बना दे। अल्लाह रोजों का तू खुद बदला है, अल्लाह इस रोजे के जरिए से तूने जन्नत के 8 दरवाजों में से एक बाबू रैयान है, अल्लाह इस रोजे की बरकत से हमें वहां तक पहुंचा दे। अल्लाह तेरे नबी ने जैसे रमजान वसूल किया, हमें समझ में नहीं आता कैसे वसूल करे। मौला दिन रमजान के गुजरते गए, न हमने रात देखी न दिन देखा। अल्लाह वही गुनाहों की आदत, वही लायानी की आदत, वही गफलतों की आदत, वही बातों की आदत, वही खाने की आदत। अल्लाह नेकियों की नौकियों से हम महरूम रहे। अल्लाह समझ में नहीं आ रहा है अल्लाह कैसे रोजे रखे, कैसे तरावी पढ़े। अल्लाह हमारी तरावियों को तू जानता है, हमारे रोजों को जानता है, हमारी तिलावतों को जानता है। अल्लाह दीन तो सरापा अदब है, न हमें रोजों में अदब है, न तरावियों में अदब है, न तिलावतों में अदब है, न दुआओं में अदब है, न आंसू के बदलने में अदब है। हमारा हर अमल तेरे गजब को दावत देने वाला है। अल्लाह तू हमारे माफ फरमा दे, मौला हमें माफ फरमा दे। मौला तेरे वहां निस्बत की बड़ी लाज है। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगर अल्लाह तेरे दीन को मिटाने आए थे, तेरे नबी को जलील करने आए थे, लेकिन जाहिर में तेरे नबी की शक्ल बनाई हुई थी, तेरी गैरत को गवारा नहीं हुआ। जाहिर मेरे नबी का और बातिन में कुफ्र हो।
तूने आने वाहिद में उनके कुफ्र को ईमान से बदल दिया, सजदे में जन्नत के मकामात दिखला दिए, साला साल के मुजाहिदों के बाद विलायत का मकाम मिलता है तूने घड़ियों में दे दिया। बोला हम कुछ भी है अल्लाह तुझसे मोहब्बत करने वाले, तेरे नबी से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाले, किबले से मोहब्बत करने वाले, अहले ईमान से मोहब्बत करने वाले, टूटा फूटा मौला हम अपनी इबादत पर नाज नहीं है मौला, टूटा फूटा अमल किया है तो अपनी बारगाह में अगर पेश कबूल कर ले तेरा ऐन करम होगा। हम अपने अमाल पर इंसाफ नहीं चाहते हैं, बोलता तू इंसाफ करने पर आया, एक घूंट पानी का हिसाब नहीं है, एक रुपया खाने का हिसाब नहीं है, हम तो फर्ज चाहते हैं, वो फर्ज जो तूने 100 के कातिल पर किया, नबी के कत्ल के इरादे से चलने वाले उमर पर किया, अल्लाह पूरी रात गाना बजाने वाले अब्दुल्लाह इब्न मुबारक पर किया, शराब पीने वाले मालिक इब्न दीनार पर किया, डाका जनी करने वाले फुजैल इब्न बियाज पर किया, 100 साल का मुशरिक भी अल्लाह पूरे 100 साल या सनम बुतों को पुकारता रहा और भूल से अगर वो या समझ कहता है तो तू उसे भी कहता है लब्बैक या अब्दी, है मेरे बंदे बोल, तू तुझे क्या जरूरत है, तू इतना बड़ा मेहरबान है। शैतान मरदूद हो रहा था, तुझसे एक दुआ की मौला तूने उसकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह फिरौन सजा में गिरफ्तार था, कैदखाने में मुब्तला था, रात को टाट के कपड़े पहनकर दरियाए नील के बीच में जाकर मौला तुझसे पानी मांग रहा है, तूने उसे पानी दे दिया मौला। मौला ये सब बागी थे, अल्लाह तूने मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह आपने वही भेजी जिस वक्त तू कानून को मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ पर धसा रहा था, कि मूसा कानून तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाता रहा, तुम्हें अपनी रिश्तेदारी का वास्ता देता रहा, लेकिन तुम जलाल में थे, बद्दुआएं करते रहे। मेरी इज्जत और जलाल की कसम, अगर कानून एक मर्तबा मुझसे माफी मांगता वो इसे माफ करता। अल्लाह हम तो कुछ भी है, तुझसे मोहब्बत करने वाले, तेरे नबी से मोहब्बत करने वाले और तेरे हुक्म के ऊपर टूटा फूटा अमल कर रहे हैं। हमें अपने अमल पर नाज नहीं है मौला, तेरी रहमत पर नाज है, तेरे नबी की निस्बत पर नाज है। अल्लाह तू हमें माफ फरमा दे। हमारे पास कोई ऐसा वास्ता नहीं है जिस वास्ते को देकर हम तो अपनी दुआओं को कबूल करवावे, हमारे अमाल को कबूल करवावे, तुझे राजी करवावे, हालात को बदलवावे। मौला एक ही वास्ता है, नबी के ताइफ के टूटे दिल का वास्ता देते हैं, नबी के ताइफ के अंदर जूतियां जो खून से लथपथ थी उसका वास्ता देते हैं, बदर के सजदों के आंसुओं का वास्ता देते हैं, बहुत के जख्मों का वास्ता देते हैं, दंदान मुबारक की शहादत का वास्ता देते हैं, 70 साहबा की खून हाथ में लाशें तड़प रही थी उसका वास्ता देते हैं। हज्जतुल वदा के मौके पर 5 घंटे तक तेरा नबी चिलचिलाती धूप में अल्लाह तेरे सामने उम्मत के लिए आहो जारी कर रहा था, उम्मत के बारे में तुझे मनवा रहा था, पसीना में शराबोर था, नबी की तवाज़ु और आजिज़ी और आंसुओं का वास्ता देता है। उम्मत की माएं जिनके घरों में 3-3 चांद गुजर जाते थे, झूला नहीं जाता था, पहला उम्मत की माओं के फाकों का वास्ता देते हैं, जवान साहबा के खून के बहने का, जवान बीवियों के बेवा होने का, मासूम बच्चों के यतीम होने का वास्ता देते हैं। तो उम्मत के हाल पर रहम फरमा दे, उम्मत की बिगड़ी बना दे, उम्मत की बिगड़ी बना दे, उम्मत की बिगड़ी बना दे, दुश्मनों के नरगों में से निकाल दे, माँ बहनों की इज्जत इस्मत की हिफाजत फरमा दे, जवान बच्चों की हिफाजत फरमा दे, जवान बच्चों की हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें दुश्मनों के हवाले न फरमा, दज्जाली फितनों से बचा दे, दज्जाल अकबर के फितने से बचा दे, दज्जाली फितनों से बचा दे, दज्जाल अकबर के फितने से बचा दे, दज्जाली फितनों से बचा दे, दज्जाल अकबर के फितनों से बचा दे। तालिबान की मदद फरमा, पूरी दुनिया में उनके जरिए सुन्नत और शरीयत को जारी फरमा दे। अल्लाह तेरे वो बंदे 20 साल की कुर्बानी अल्लाह देने के बाद उन्होंने बदर की आग ताजा कर दी, अहद की आग ताजा कर दी, अहजाब की आग ताजा कर ली। मौला तेरे उन बंदों के जरिए से पूरी दुनिया में शरीयत और सुन्नत को जारी फरमा दे। अल्लाह हक तो ये था कंधे से कंधा मिलाकर हम उनका साथ देते, लेकिन हम वहां नहीं पहुंच सकते, दुआओं के जरिए से मौला हम उनको तकवीत पहुंचाते हैं। अल्लाह हमारी दुआएं उनके हक में कबूल फरमा। अल्लाह आले सऊद को हिदायत दे दे, आले सऊद को हिदायत दे दे, आले सऊद को हिदायत दे दे। मौला उन्हें तन्हाइयों में सोचने की तौफीक अता फरमा। जिन जमीन के ऊपर हम सिनेमा घर खोल रहे हैं वो मोहब्बत वही है, वहाँ हमारे नबी सोए हुए हैं, वहाँ कुरान नाजिल हुआ है, वहाँ वही की बरकत नाजिल हुई है। नबी की बैसत के मकसदों में से एक मकसद दुनिया से गाना बजाना था। अल्लाह तन्हाई में इनको सोचने की तौफीक अता फरमा। कल क़यामत के दिन तुझे क्या मुंह दिखाएंगे, तेरे नबी को क्या मुंह दिखाएंगे, सहाबा को क्या मुंह दिखाएंगे। मौला इनके हाजियों की खिदमत, उमरा करने वालों की खिदमत का तुझे वास्ता
रास्ता देते हैं, सुबह का भूला शाम को वापिस आवे। भूला नहीं कहते, तू दुश्मनों के नरकों से इन्हें निकाल दे, मगरिबियत का गुलाम बनने से इनको बचा ले, मगरिबियत की अल्लाह तहजीबों से तू इन्हें निकाल दे, और अल्लाह तन्हाइयों में सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमा। और अगर गुनाहों की नहुसत की वजह से तेरी तरफ से कोई और ही फैसला हो चुका है तो तू अपने हरम की पासबानी के लिए नेक लोगों को इख्तिदार अता फरमा दे, नेक लोगों के जिनके दिलों में, जिनके रगो पैनों में हरमैन शरीफैन की अजमत बैठी हुई है, तुर्क के सदर की दाएं से बाएं से आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से हिफाजत फरमा दे, इस्लामी ममालिक के सरबराहों को हिदायत अता फरमा, शरी कवानीन के निफाज की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह बैतुल मक़दिस को यहूदियों के गासिबाना कब्जे से आजाद फरमा। ऐ अल्लाह हमारी माँ बहनों को पर्दों का एहतिमाम नसीब फरमा। ऐ अल्लाह नमाजों का एहतिमाम नसीब फरमा, तालीमों का एहतिमाम नसीब फरमा, उनको अपने बच्चों की फिक्र करने की और बेहतरीन तरबियत करने की अल्लाह उन्हें एहतिमाम नसीब फरमा। ऐ अल्लाह ज्यादा वक्त अल्लाह तन्हाइयों में तेरे जिक्र में गुजारने की तौफीक अता फरमा। मौला हमारी तबीयतें चाहे न चाहे पेशानी के बाल पकड़ पकड़ कर तो हमें ताअत की सड़कों पर डाल दे, तेरे रजा वाले काम करवा दे, तेरी खशियत अता फरमा दे, तेरी अजमत अता फरमा दे। मौला रोजे का मकसद हुसूल तकवा है, हमारा रोजा तो इस काबिल नहीं है। मौला हमने एक नकल उतारी है, तू उसको असल बना दे और असल बनाकर मौला वो तकवा अता फरमा दे, हमें तेरे अतका बंदों में शामिल फरमा दे, हमारे दिलों में तेरी खशियत और अजमत डाल दे। मौला जैसे खिंजीर से नफरत करते हैं, शराब से नफरत करते हैं, कभी इनके खाने और पीने का तसव्वुर नहीं होता, हमें सारे गुनाहों से नफरत करने वाला बना दे, गुनाहों से नफरत करने वाला बना दे। मौला इस रमजान को तो हमारे लिए पूरी उम्मत की जिंदगियों में बेहतरीन इनकलाब का जरिया बना दे, बेहतरीन इनकलाब का जरिया बना दे, आखिरत की तरफ मुतवज्जो होने का जरिया बना दे, ज़ौक़ का जरिया बना दे, तकवे का जरिया बना दे, तुझसे मोहब्बत का जरिया बना दे, दुनिया से एराज का जरिया बना दे। अल्लाह हलाल रोजी अता फरमा, हराम रोजियों से बचा दे, सूद से बचा दे, सूद के धुएं से बचा दे, भूखों को खिला दे, नंगों को पहना दे, प्यासों की प्यास बुझा दे, मदरसे की, मकातिब की, खानकाहों की, दीनी दरसगाहों की, तबलीगी मराकिज की, इस्लामी शायर की, मुसलमानों के जान माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा ले। अल्लाह मांगना बहुत कुछ है, तेरे खजाने भरे पड़े हैं, हम मांगते मांगते थक जाएंगे, तू देते हुए नहीं थकेगा। तेरे कितने बंदे और बंदियों ने मौला हमसे उसने जन रखते हुए दुआओं की दरखास्त की है, कितना कहना चाहते थे कह नहीं सकते हैं। मौला कितनों ने नहीं कहा, मौला चाहे कहा हो न कहा हो, पूरी उम्मत का हमारे ऊपर हक है। अल्लाह हमने माजी में जितनी मांगी है, हाल में मांग रहे हैं, मुस्तकबिल में मांगेंगे, और जब से तूने दुनिया आबाद की है, इमामुल अंबिया ने, सवा लाख नबियों ने, नबियों के साहबा और कुतुब व सद्दालों ने दुआओं की कबूलियत की जगह में अल्लाह जिस जगह में, जिस मकान में, जिस हाल में मौला जितनी भी खैर मांगी है अल्लाह हमारे और पूरी उम्मत के हक में कबूल फरमा, और जितने भी शुरूर से पना चाहिए उनसे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। मौला जय दिन रमजान की बाकी है, दिनों की भी कदरदानी नसीब फरमा, रातों की भी कदरदानी नसीब फरमा, शबे कदर और उसकी मकबूल इबादत अता फरमा, शबे कदर और उसकी मकबूल इबादत अता फरमा, शबे कदर और उसकी मकबूल इबादत अता फरमा। जिब्राइल और फरिश्तों का मुसाफा नसीब फरमा, जिब्राइल और फरिश्तों का मुसाफा नसीब फरमा, जिब्राइल और फरिश्तों का मुसाफा नसीब फरमा। बड़ी मुबारक रात है, ठंडी रात है और तबीयत नहीं चाह रही है, इसलिए कि उस खुदा की बारगाह के सामने हम हाथ फैलाए हुए हैं जो बेनियाज है, जिसके खजाने भरे पड़े हैं। मौला हम मोहताज है, कदम कदम पर मोहताज है। मौला हमारे पढ़ने पढ़ाने को कबूल फरमा, हदीस की खिदमत को कबूल फरमा, उसके लिए जिस हाफिज़े की जरूरत है, जिस जहानत की जरूरत है मौला वो हमें अता फरमा दे। मौला हमारे जिंदगियों के अंदर अल्लाह इस हदीस और उसकी सुन्नतों को अल्लाह तू अल्लाह जिंदा फरमा दे। अल्लाह हमारी जिंदगियों को नमूना बना दे, दर्स व तदरीस के जरिए, वाज़ व तबलीग के जरिए, तकरीर व तहजीर के जरिए, अल्लाह तलवा में, अल्लाह अवाम में, खवास में, अल्लाह खसुल खवास में अल्लाह तेरे दीन को पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। रियाकारी से बचा दे, दिखलावे से बचा दे, उब्बे जाल से बचा दे, उब्बे माल से बचा दे। ए मौला ये सब हवा है, दुनिया वालों की तारीफों से कुछ नहीं होता है। दुनिया वालों ने तारीफ कर दी और तू नाराज हो गया, हम हलाक और बर्बाद हो जाएंगे। और दुनिया वालों ने अगर तारीफें नहीं की और तू राजी हो गया है, ऐ अल्लाह साहबा वाला इखलास अता फरमा। मौला हमारे अकाइद को दुरुस्त फरमा दे, मामलात की दुरुस्तगी अता फरमा। ऐ अल्लाह माशरत की पाकीज़गी अता फरमा, अखलाक की बुलंदी अता फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। मौला जिंदगी में जबान से कोई गलत बोल निकला हो, बदन से कोई गलत बोल निकला हो जो तुझे नाराज करने वाला हो और तूने नाराज होकर शकी और बदबख्तों में लिख दिया हो, तो लिखना भी तेरा काम है, अल्लाह मिटाना भी तेरा काम है। हमें शकी
नबी और बदबख्तों की फहरिस्त से निकाल कर शहीदों और नेक भक्तों की फहरिस्त में दाखिल फरमा दे। मौला हसरत और अफसोस उस पर नहीं है जो मंदिरों में रहा और कुफ्र पर मरे, हसरत और अफसोस वो है जो मस्जिदों में रहा हो, नमाज पढ़ता हो, रोजा रखता हो, ज़कात अदा करता हो, हज करता हो, मुसलमानों की जबान पर मुसलमान, पहला आधार कार्ड और पासपोर्ट में मुसलमान, मरे तो मुसलमानों की तरह गुस्ल दिया जावे, कफन पहनाया जावे, जनाजे की नमाज पढ़ी जावे, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दाखिल किया जावे, दफन किया जावे, लेकिन तेरी फहरिस्त में मुसलमान न हो, ऐसे बदबख्त इंसानों में ज़ह में शामिल न फरमा। अल्लाह राजी हो जा, अल्लाह राजी हो जा, अल्लाह राजी हो जा। मौला अगर इतने से बंदे पागल के किसी सखी के दर पर इतनी रात को चले जावे, एक रुपये का सवाल करे, उस सखी को 1 रुपया देना जितना आसान है उससे कई गुना तुझे हमें नवाजना आसान है। हमारी झोलियों को हिदायत से भर दे, अमन अमान से भर दे, तेरी रजा से भर दे, तेरी मोहब्बत से भर दे, तेरे नबी की मोहब्बत से भर दे, कुरान की मोहब्बत से भर दे। ऐ अल्लाह हमारी बस्ती पर तू खुसूसी अपना करम फरमा, सारे लोगों को मुत्तफिक होकर मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमा, दिल में से कुदरत निकाल दे। तूने रमजान का महीना इसीलिए दिया है, दिल को साफ करने के लिए दिया है, दिल में तेरे और तेरे रसूल की मोहब्बत हमें अता फरमा और आपस के हसद और बुग़्ज़ और कीनों को खत्म फरमा। ईमान वालों के बारे में हमारे दिलों में अल्लाह पाक दिलों को पाक साफ रहने रख दे, हमें कता रहमी से बचा दे, सिला रहमी की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह तूने अल्लाह फरमाया, अल्लाह वारिसों को कहा है जब माल की तकसीम के लिए बैठो कोई गैर वारिस आ जावे तो उसे भी उसमें से दे दो। अल्लाह तेरे नेक बंदे जिन्होंने रमजान के अंदर तेरी इबादतें करके रोजा रखकर आंसू बहाकर तुझे मनवाया है, वो तेरी तरफ से नेकियों के वारिस है, वरासत के हकदार है। हम जैसे निकम्मे नाफरमान और बागी भी मौला अल्लाह तेरे सामने आए हुए हैं, आए नहीं है मौला, तूने बुलाया है, ये तेरी तौफीक से सारे अमल हुए हैं। मौला तू हमें शामिल फरमा ले, हमें शामिल फरमा ले, हमें शामिल फरमा ले, मारूम न फरमा। दोबारा मौला इन हफ़ाज़ किराम अल्लाह उनके वाली, उनके माँ बाप, उनके असातिज़ा, उनके पीछे जितनों ने भी मेहनत किए उनके बारे में अल्लाह दुआओं की कबूलियत के एतबार से तेरे नबी ने और अल्लाह माजी में जब भी अल्लाह कुरान खत्म हुआ है, साहबा ने, ताबीन ने, तबे ताबीन ने जितने भी दुआएं खैर की मांगी है वो सब उनके हक में और सारे हाफिजों के हक में और हमारे हक में कबूल फरमा। और जितने भी शुरू से पना चाहिए उनसे हमारी, उनकी और पूरे हाफिजों की और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। तेरे बंदे और बंदियां बैठे हुए हैं, दिलों में क्या क्या अरमान लिए हुए हैं, कह नहीं सकते, सह नहीं सकते, तू जानता है, तेरे बंदे जानते हैं। दुनिया आखिरत के सारे अरमानों को पूरा फरमा। जीना का ताइबीन फला तरुद्दना खाइबीन, जीना का ताइबीन फला तरुद्दना खाइबीन, जीना का ताइबीन फला तरुद्दना खाइबीन। मौला तौबा करने वालों की शक्ल बनाकर आए हैं। हमारे नबी ने फरमाया है दुनिया वालों के वहां खोटे सिक्के नहीं चलते हैं, लेकिन मेरे खुदा का दरबार वो दरबार है जहां खोटे सिक्के चल जाते हैं। रोना ना आवे तो रोने वालों की शक्ल बना लो। ये तेरे बंदे आंखों से भी रो रहे हैं, दिल से भी रो रहे हैं, अपने गुनाहों पर नादिम और शर्माशार है। ऐ अल्लाह मजलिस से उठने से पहले पहले हमें अहले मजलिस की, हमारे खानदान की, हमारे मरहूमीन की, हमारे मौजूदीन की, आइंदा आने वाले नस्लों की सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। हमारी इन टूटी फूटी दुआओं को महज अपने फजल करम से जनाब सल्लल्लाहु के सदक़े उनके तुफ़ैल में कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि अस्हाबी अजमईन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। Gracias.